Good evening, everyone. I, CA Prasad Zaure, welcome all parents and students for this special seminar on Introduction to CA course. This session is specifically meant for the students who are appearing their 12th in coming March, April or May, as the case may be. At the same time, there are also some students who have given their 12th examination. They are in the first year of BCom. So I will also accordingly guide them for the preparation of the CA course. Usually, we take such sessions in our classrooms, that is on offline mode. But because of some unforeseeable reasons, we are forced to take this session online using Zoom as a platform. I request all students and the parents to park their questions. They can ping their questions in the chat box. There will be question answer session at the end of this seminar. We'll be taking the seminar for minimum 1 hour to maximum 1 hour 50 minutes. We won't be extending that. The last 5 to 10 minutes will be question answer sessions. I will address all your questions. Maybe during our seminar, during our presentation, you will get answers to many of your questions. So if there is any question, you can park in the chat box or you can ask at the end. My sincere request to everyone to understand the presentation in depth. If any questions, as I already told you, don't disturb me in between. Please ask me at the end. That is my sincere request to everyone. Before I start with my presentation, before I share my PPT with you, I would like to put some numbers before you, which will help you to understand the scope of the chartered accountant in coming years or in coming decades. For your information, India's GDP was $2.7 trillion 3 years before. It is expected to double in next 6, 7 or 8 years down the line. India is heading towards 5 trillion US dollars economy. As GDP will double, as national income increases, economy grows, the benefits of it will accrue to everyone, every section of the society, every individual of the society. But the chartered accountants or the CAs will get most benefited. Reason is very simple. As economy grows, the business expands. The per capita income of the individuals increases. And many businesses and many individuals will come under the tax purview, the ambit of the taxation, maybe direct tax, indirect tax. As income increases, the society needs persons who deals in the M vitamin. M vitamins means money. And they are the chartered accountants. They look after the finances. They plan the taxations. They help you to grow your business, manage your business successfully. And obviously, there is a large scope for the chartered accountants in coming decades. I generally say the next 2 to 3 decades will be of the chartered accountants. Some numbers for your reference. In India, where the population is 138 crores, try to understand, 12 lakhs companies have been registered so far. 12 lakhs companies have been registered. 1.14 crore, there are GST taxpayers on monthly basis. 1.14 crores taxpayers, GST taxpayers on monthly basis. 3.75 crores individual taxpayers have filed their income tax return by the 31st of December. This data is as on 31st of December. So 3.75 crores out of 138 crores population has filed income tax return. It is around 2% or 2.70% tentatively. But as government is making laws more stringent, they are widening the tax jurisdiction.
जो भी लॉज में लूपहोल्स है वो फिलअप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, एवरीवन इज गेटिंग कनेक्टेड थ्रू आधार कार्ड, सब राइट, सब कुछ लिंक हो रहा है, तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ द टैक्स पेयर्स विल इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आज almost 3% of the entire population of India actually files the returns. Try to understand. And this will substantially grow in coming decades because हमारी इकोनॉमी डबल हो जाएगी in 3 to 4 या मे बी 5-6 years down the line. The chartered accountants, right? अगर आप 1947 से 1949 से when a institute is like established 1949 से, अगर आप आज के तारीख तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नंबर्स देखते हो, इट इज अराउंड 3 lakhs. उनमें से कोई एक्टिव भी नहीं रहेंगे आज. सो ऑन एंड अराउंड 3 lakh चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिंस 1949. एंड जब इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल ऑब्वियसली इंक्रीज, राइट, वे हायर रहेगी वो. सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी. जो भी लोग सोच रहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का, तो आई कैन एश्योर यू दिस इज अ परफेक्ट प्रोफेशन, दिस इज अ परफेक्ट करियर, बिकॉज इसको फ्यूचर है. देन ऑलमोस्ट मेनी लाइक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, 3.75 crores टैक्स पेयर्स जैसे मैंने बोला, देयर आर मेनी सोल प्रोप्राइटरशिप्स एंड द पार्टनरशिप फर्म्स. Some are registered, some are not registered. So scope is very huge and वो increase होने वाला, वो कम तो definitely होने वाला नहीं है. जैसे हर फैमिली के लिए फैमिली डॉक्टर होता है, सिमिलरली नाउ ऑलमोस्ट हर फैमिली के उनका एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है. What I mean, considering these figures, the scope for the chartered accountant as such in India is increasing. At the same time, the other countries also recognize the Indian chartered accountants because it is one of the toughest course. If you consider chartered accountants or CPA across the globe, ये सबसे toughest course है. मतलब आप Indian CA हो तो obviously you have demand even abroad. I have many of my friends who are working in New Zealand, Canada, Saudis, USA. My relatives, I am a 23rd chartered accountant from my family. मेरे घर में से 10-15 लोग बाहर काम कर रहे हैं. Maybe they are CEOs, they are entrepreneurs, they are providing services, या कहाँ पे जॉब कर रहे हैं. So I can give example from my family itself. On this note, I will start with my presentation. Let me share my screen. Yeah, I think screen is visible to you. Okay. What to expect from a career or from a profession? आप कोई भी करियर चूज करते हो, कोई भी प्रोफेशन एज ए करियर चूज करते हो, तो व्हाट यू एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट? सम थिंग्स लाइक एज ए करियर you expect the career should give you job security or job surety. आपको वो करियर होने के बाद, वो डिग्री मिलने के बाद आपको जॉब मिलना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या वो प्राइवेट जॉब हो, जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो एवरीवन एक्सपेक्ट जॉब सिक्योरिटी इन ए करियर. व्हाट इज द सेकंड एक्सपेक्टेशंस? गुड सैलरी. खाली जॉब से काम नहीं बनता, सैलरी शुड बी ऑल्सो हैंडसम सैलरी होनी चाहिए, अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए. देन जॉब ऑप्शंस होने चाहिए. लाइक मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकता हूँ. लाइक मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ, मैं आईटी में काम कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में. देयर शुड बी मल्टीपल जॉब ऑप्शंस. कोई भी करियर आपको अलग अलग जॉब ऑप्शंस ऑफर करना चाहिए. देन if you are not interested in doing job, you should get those skills which will help to be self-employable. Means you will generate jobs for other, you will work for yourself, right? आप जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, उनका खुद का क्लिनिक होता है, ऑन सिमिलर बेसिस हम भी हमारे प्रैक्टिस या हम हमारा खुद का राइट ऑफिस होना चाहिए. सो द करियर शुड मेक यू सेल्फ एम्प्लॉयबल.
The career should be a global, like make you globally recognized. So कोई भी करियर से हम ये सब मिनिमम ये तो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जॉब सिक्योर होना चाहिए, हमारा अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, हमें अलग अलग जॉब ऑप्शंस होने चाहिए कि मुझे ये नहीं तो मुझे दूसरे में नहीं तो किसी इंडस्ट्री में, चौथे इंडस्ट्री में। आपके पास डोर्स ओपन होनी चाहिए। अगर आपको जॉब नहीं करना है तो एटलीस्ट मैं खुद का कुछ तो कर सकता हूं। एंड ऑब्वियसली ग्लोबल रिकॉग्निशन मतलब मैं अक्रॉस द ग्लोब जिधर भी चाहिए मैं वहां पे मैं जॉब कर सकता हूं या मैं वहां पे खुद का कुछ कर सकता हूं। अगर ऐसे कोई आपको प्रोफेशन ऐसा करियर दे रहा है तो आप बोलते हो वो बेस्ट प्रोफेशन है या वो करियर बेस्ट करियर है, एंड जनरली उसकी डिमांड भी हाई रहती है। सो अगर आप इन सब चीजों को राइट, अगर एक क्राइटेरिया है आपका, इफ यू कीप ऑल दीज थिंग्स इनटू माइंड, which is that profession which will help you to get all these expectations, and according to me it is chartered accountancy course. It will give you all those right things which you expect from a career or from a profession. So if you want you can do a job, आप you can be an employee, आप जॉब में जा सकते हो, that is CAs in सर्विस, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको सर्विस नहीं करनी है, आपको खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए, यू कैन डू प्रैक्टिस, CAs in प्रैक्टिस। सर ना ही मुझे जॉब करना है ना ही मुझे प्रैक्टिस करनी है, सर आई हैव टू स्टार्ट विथ माय ओन एंटरप्राइज, ओन बिजनेस। यू कैन डू a business because your knowledge of the finance, your knowledge of taxation and everything, you learn the management in CA course. So there are multiple doors open for you if you pass out as a chartered accountant. Try to understand. And all these things are in your syllabus. ये आप सब सीखोगे, try to understand at the 3 levels. So CA is one of those course or one of those profession which will help you to satisfy all your expectations from a career. I will share some statistics with you. The scope of the Indian Chartered Accountants, try to understand. In New Zealand, there are 68 CPAs. वहां पे CS को CPA बोलते हैं. There are 68 CPAs per 10,000 of the population of New Zealand. In UK, there are 21 CPAs behind 10,000 population. In Australia, 18 CPAs equivalent to chartered accountant per 10,000 population of Australia. In USA, there are 15 CPAs per or chartered accountants per 10,000 population. So जिनके data मुझे available हुए, I have gone through them, I have crunched the numbers, and फिर according to right the data which is available in a domain, I have calculated these numbers. In India, अगर आप number of chartered accountants per 10,000 population अगर if you calculate, it is, मैंने बोला around 3 lakhs chartered accountants and हमारी population 138 crores के almost है. If you find out, it is almost, you can see 2 chartered accountants per 10,000 of the population. So you can see there is a huge gap to be filled up. अगर आप किसी भी like UK के साथ compare करो, 15 chartered accountants behind 10,000 population, इंडिया में 2 ही है. अगर आप न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर करते हो, ओके, न्यूजीलैंड वैसे देखा जाए तो ज्योग्राफी वाइज, पॉपुलेशन वाइज छोटा देश है, बट फिर भी यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज स्पेस टू बी फिल्ड अप. एक बहुत गैप है. एंड इंडिया अगर आप देखोगे तो इट इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड द रेट एट विच इट इज ग्रोइंग, द नीड ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल बी वेरी वेरी ह्यूज. तो ये गैप कौन फिल करने वाला है? ऑब्वियसली यू गाइज हु आर राइट. हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस 2 में तो हम लोग आते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो गैप है वो फिल आप लोग करने वाले, द कमिंग जनरेशन हु इज परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सो पहले तो मैं ये बोल रहा हूं कि चेक द स्कोप. हम कोई भी प्रोफेशन देखते टाइम पहले हम सोचते कि क्या स्कोप रहेगा, इसका फ्यूचर है या नहीं है. ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव गॉट ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया.
Then, as I explained you, what a chartered accountant can do, try to understand. You can start your own practice. Generally, जब भी हम सीए देखते हैं तो हमें लगता है उसका लाइक हमें दिमाग में एक पिक्चर आता है, एक सीए उसका ऑफिस है, उसके ऑफिस में आर्टिकल्स है, उसका स्टाफ है, वो क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं, दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज. दिस इज द फर्स्ट prima facie picture that pops up in our mind, and that is very correct. बिकॉज अगर आप देखते हो मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोपोर्शन देखते हो, मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इनटू प्रैक्टिस. And what kind of practice they provide, or what kind of services they provide as a practicing chartered accountant? Try to understand. They provide auditing and assurance services like statutory audits, internal audits, or certification work. They also provide tax services, direct tax services, that is income tax example, and indirect tax services like GST. They also provide financial services like project planning or project financing, working capital management, and also investment banking services. They provide some other services like auditing services, accounting services, business valuation services, financial reporting, cost accounting services. So these are some of the examples of the services provided by CA in practice. You can do specialization in any one of them. खाली सीए प्रैक्टिस में होते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली इफ यू चेक रिसेंट स्टैटिस्टिक्स, मैं क्या बोल रहा था कि मैक्सिमम अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंट्स आर इनटू प्रैक्टिस. बट रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देखते हो जो अभी की जनरेशन है, अगर उनमें देखते हो तो दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सर्विस. दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सर्विस बिकॉज यू गेट हैंडसम पैकेजेस. आपको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं, आप प्राइवेट में भी बहुत अच्छा आपको पैकेजेस मिलते हैं. अगर पुणे में देखते हो कोई भी फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पुणे में मिनिमम जो मैंने देखा है 9 लाख to 10 लाख का मिनिमम पैकेज है. मैं बोल रहा हूँ मिनिमम बोल रहा हूँ, कोई भी मतलब जो 2-3 अटेम्प्ट में निकला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. अगर इफ थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट आपके मार्क्स आपके अच्छे, आपका इंटरव्यू आपने आपके स्किल सेट्स जनरेट किए, डेवलप किए, तो ऑब्वियसली आपका पैकेज ज्यादा रहेगा. मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एक आज की जनरेशन का अगर देखते हो, दे आर इनटू लाइक सर्विस. एज ए सर्विस में क्या करते हैं, दे यू कैन वर्क एज ए एग्जीक्यूटिव लाइक सीईओ, सीएफओ, etc. You can act as a management accountant. My first job when I passed out as a chartered accountant, I worked with Accenture. जब मैं लोगों को बोलता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक्सेंचर में काम करता हूँ, तो लोग बोलते थे आईटी कंपनी में तुम्हारा क्या काम है. एक्चुअली आई वाज हेडिंग 200 MBAs. I was a fresher basically, but I was heading 200 MBAs and I was working on LBG project, Lloyds Banking Group. It is Lloyds Banking, जैसे हमारे SBI वैसे यूके में Lloyds Banking Group है, एंड वहां पे एक्सेंचर के रिसोर्सेस इंजीनियर्स काम करते थे. तो उनका पूरा मैनेजमेंट वगैरह एंड उनका फाइनेंशियल्स मैनेज करने का एक्सेंचर के पास था. एंड दियर 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक अलग डिपार्टमेंट था, एंड जो अलग अलग क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज देते थे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आप स्कोप देख सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं. एंड देयर आई वाज वर्किंग एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट. आई यूज्ड टू वर्क एज ए अकाउंटेंट फॉर द मैनेजमेंट. मैं मैनेजमेंट के लिए रिपोर्टिंग करता था, फॉर टेकिंग देयर डिसीजंस. क्या होना चाहिए, कहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, कहाँ पे इफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, कौन से लेबर्स एम्प्लॉय करनी चाहिए, एक्सेट्रा. सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अदर्स like you can act as like bureaucrats. Example, bureaucrats are the people who work in a government department. Like example, Piyush Goyal ji, he's a bureaucrat, he's a chartered accountant. Try to understand. Lecturers, I am a chartered accountant, I am into lectures, I am a lecturer, I am into coaching. Consultant, you can act as a consultant. So as right as a अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप जॉब कर सकते हो, आप सर्विस में आ सकते हो, मतलब आप कहां पे जॉब कर सकते हो. अगर आपको दोनों नहीं करना है, ना ही आपको सर्विस करनी है ना ही आपको प्रैक्टिस करनी है, तो थर्ड वे, स्टार्ट योर ओन बिजनेस. बी एन एंटरप्रेन्योर. यू कैन स्टार्ट योर एंटरप्राइज, यू कैन बी अ डायरेक्टर इन ए कंपनी, एंड राइट यू कैन एक्ट एज ए आर्बिट्रेटर, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर्स.
right? A chartered accountant is capable of performing all these functions. Try to understand. I can give some examples. Try to understand. You must be knowing Kotak Mahindra Bank. It was headed by chartered accountant Uday Kotak. अगर आपको आदित्य बिरला ग्रुप पता है, कुमार मंगलम बिरला इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. दे स्टार्टेड देयर बिजनेस एंड यू नो देम. हमें ये नहीं पता वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे जो सबको पता है मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं. सो प्रैक्टिस, नहीं तो जॉब, नहीं तो खुद का बिजनेस कर सकते हो. एंड ऑल दीज स्किल सेट्स विल बी गिवन बाय दिस कोर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस विल हेल्प यू टू डेवलप द स्किल सेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड for you. And आप आपके हिसाब से, like CA final में there is a one subject elective paper. There are 7 options. 7 option में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो. And accordingly you can develop your skills. This like CA course is getting amended as per the demand of the industry. तो अगर आपको एग्जाम्पल किसी को कैपिटल मार्केट में स्पेशलाइजेशन करना है तो ही कैन चूज दैट सब्जेक्ट. किसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करना है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट चूज कर सकता है. किसी को इंटरनेशनल टैक्सेशन में करना है तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो सब्जेक्ट है प्रॉपर, आप वो स्टडी कर सकते हो. रिस्क एनालिसिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो कोर्स ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है कि बाय द एंड ऑफ द सीए फाइनल यू विल बी अ लाइक एक्सपर्ट इन द फील्ड. सो you can do a service, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, you can do a business. So all options are open. Then CA course in at a glance. Try to understand. You have to appear 3 examinations. आपको 3 एग्जाम्स देने over 4 years और 4.5 years after your 12th. अगर मैं आपके 12th मार्च अप्रैल मई में पकड़ता हूं तो उसके बाद it will take 4.5 years after 12th बात कर रहा हूं, 4.5 years to qualify as a chartered accountant. आपको 3 एग्जाम देने. फर्स्ट एग्जाम जो 12th के बाद नवंबर में देनी है, that is CA foundation. Like you can say it is an entrance exam, kind of entrance exam. Then you have to appear CA inter, the second level, and then after 3 years you have to appear CA final exam. So every chartered accountant or every chartered accountant student has to qualify these or pass these 3 exams. These are 3 milestones in your journey as a chartered accountant: CA foundation, CA inter, and CA final. Try to understand. At a CA foundation level, you will be appearing for 4 papers of 100 marks each. Some papers are subjective, some papers are descriptive, some papers are subjective or descriptive, and some papers are objective based. 4 papers at CA foundation level, overall 8 papers at CA inter level, and 8 papers at CA final level. We are here to talk about the CA foundation, and as you start the journey you will understand CA inter and CA final. We will be providing lectures. Right, we'll be taking such seminars for the parents as well as students for that purpose as well. So 3 एग्जाम्स रहेंगे: CA फाउंडेशन, CA इंटर एंड CA फाइनल. ऑब्वियसली आपको हर एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है. ऐसे नहीं कि आप सपोज आप CA फाउंडेशन में पास हो गए एंड बाद में CA इंटर में सपोज फेल हो गए. अनफॉर्चुनेटली अगर फेल होते तो आपको फिर से फाउंडेशन से स्टार्ट नहीं करना है, आपको इंटर ही देना. इट इज नॉट लाइक यूपीएससी कि आप प्रीलिम्स निकल गए, लाइक मेंस निकल गए और इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई होते तो आपको फिर से इनिशियल से स्टार्ट करना है. ऐसे नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जहां पे आप फेल होते वही एग्जाम आपको फिर से देनी है. एंड आपको रिट्रोस्पेक्टिव स्टार्ट नहीं करना है, आपको वहां से आगे चलना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज वन थिंग. दूसरी चीज, ऑल दीज एग्जाम्स आर हेल्ड ट्वाइस इन ईयर, इन द मंथ ऑफ मे एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर. मतलब अगर कोई एग्जाम फेल भी होता है तो आपका पूरा ईयर ड्रॉप नहीं होता है. नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू हैव टू अगेन अपियर फॉर द एग्जाम. तो आपका पूरा ईयर ड्रॉप नहीं होता है. ये भी समझना इंपॉर्टेंट है. सो 3 एग्जामिनेशन CA फाउंडेशन आफ्टर 12th नवंबर में, एग्जैक्टली 1 साल के बाद, राइट, CA इंटर, एंड उसके बाद यू हैव टू अंडरगो 3 इयर्स आर्टिकलशिप. ये जो इंटर एंड फाइनल का जो बीच में है, इंटर एंड फाइनल के बीच में यू हैव टू अंडरगो 3 इयर्स
articleship, that is practical training under any practicing chartered accountant. That is the heart of the chartered accountancy course. Try to understand. आपको CA इंटर के बाद CA फाइनल के बीच में 3 years की आर्टिकलशिप करनी है. So whatever you learn at CA फाउंडेशन एंड CA इंटर, आप वो प्रैक्टिकली इन आर्टिकलशिप में वो करोगे. So जब आप CA फाइनल करते हो तब आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी. Assuming the maximum crowd is the crowd which is like appearing their 12th in the March, April or May as the case may be. So I have given the timeline for them and this timeline ये आपके दिमाग में होनी चाहिए और आपका टारगेट होना चाहिए कि ये जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के भीतर ही मैं पास होगा. You will be appearing your 12th in the March. ऐसे मैंने यहाँ पे मार्च जो नॉर्मली मार्च होता है मैंने वो रखा है. मार्च 2021 में अभी आने वाले मार्च अप्रैल में जो कुछ भी रहेगा, राइट, अब आपका 12th अपेयर करोगे बोर्ड्स एग्जाम्स. उसके बाद जो नवंबर रहेगा, आने वाला नवंबर इसी साल का नवंबर 2021, यू विल बी अपेयरिंग योर CA फाउंडेशन. उसका रिजल्ट, नवंबर का रिजल्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जनवरी में लगता है. अगर एग्जाम्स नवंबर में होती है तो रिजल्ट जनवरी में लगेगा, जनवरी 2022 में लगेगा. एंड उसके एग्जैक्टली एक साल के बाद, मतलब नवंबर 21 में आपकी CA फाउंडेशन होगा, एग्जैक्टली एक साल के बाद नवंबर 22 में आपका रिजल्ट जनवरी 22 में लगेगा. नवंबर 22 में यू हैव टू अपीयर फॉर CA इंटर. CA इंटर का रिजल्ट जो नवंबर 2022 में होगा उसका रिजल्ट जनवरी 2023 में लगेगा. एंड ऑफ 3rd वीक ऑफ जनवरी में रिजल्ट जनरली अनाउंस होते हैं, 3rd वीक ऑफ जनवरी. सो जनवरी 2023 में आपका CA इंटर का रिजल्ट अनाउंस होगा. जैसे आप CA रिजल्ट्स आप इंटर का पास होते हो, यू हैव टू अंडरगो 3 years आर्टिकल ट्रेनिंग. सो जनवरी एंड में आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी 3 years की. सो जनवरी एंड 2023 से आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी एंड योर आर्टिकलशिप विल गेट ओवर बाय द एंड ऑफ जनवरी 2026. जनवरी 2026 के एंड में आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी. जब 3 years की आर्टिकलशिप करते हो, इन द लास्ट 6 months ऑफ योर आर्टिकलशिप, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, इन द लास्ट 6 months ऑफ योर आर्टिकलशिप यू हैव टू अपीयर फॉर योर CA फाइनल एग्जाम. मतलब आपकी आर्टिकलशिप कब ड्यू है, राइट, योर आर्टिकलशिप विल गेट ओवर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026. उसके लास्ट 6 months में जो अटेम्प्ट आता है वो नवंबर 2025 का अटेम्प्ट आता है. You have to appear for that examination. You are eligible to appear for CA final if you pass everything in the first attempt in November 2025. उसका रिजल्ट अराउंड जनवरी में लगेगा, 3rd वीक ऑफ जनवरी 2026. जनवरी एंड में आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी 3 years की एंड by the end of January 2026 you will be qualified as a chartered accountant. ध्यान देना, मैं थोड़े टाइमलाइन ठीक से लिखता हूं और थोड़ा एक्सप्लेन, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मस्ट नो दिस, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उनका राइट जो चाइल्ड है वो एक्चुअली कैसे प्रोग्रेस करेगा. सो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आई थिंक माई एक्सेल इज विजिबल. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेवल, राइट, एग्जाम्स, ठीक है. Then results. Generally, first is CA foundation. So first is CA foundation. Exam will be in the November 2021. Exam in the November 2021. ठीक है, इसका रिजल्ट लगेगा जनवरी 2022. जनवरी 22 में रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड. नहीं, ओके. इसके बाद ये होने के बाद आपका CA इंटर आएगा, इंटरमीडिएट और इंटर. ये एग्जाम एग्जैक्टली एक साल के बाद होती है CA फाउंडेशन के बाद. CA फाउंडेशन नवंबर 21 में होगी, उसके एग्जैक्टली एक साल के बाद दैट इज नवंबर 2022 में आपका CA इंटर की एग्जाम होगी. इसका रिजल्ट लगेगा लाइक जनवरी 2023 में.
देन यू हैव टू गो लाइक ट्रेनिंग, मैं सिंपल लिखता हूं, ट्रेनिंग ऑफ 3 years, इसको बोलते हैं आर्टिकलशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 3 years। सो ये ट्रेनिंग जनरली जनवरी में स्टार्ट होगी, जनवरी एंड, या मैं फरवरी बोलता हूं फॉर सेफर साइड, फरवरी 2023, एंड ये एंड हो जाएगी, फरवरी एंड पकड़ के चलते, फरवरी 2026। योर CA फाइनल एग्जाम विल बी हेल्ड इन द लास्ट 6 months ऑफ योर आर्टिकलशिप, वो आएगा नवंबर 2025, एंड इसका रिजल्ट लगेगा जनवरी 2026। सो जनवरी एंड में आपका CA फाइनल का रिजल्ट लगेगा, मान के चलो और 10-15 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपके आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी। सो यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय जनवरी और फरवरी 2026। ये आपका लाइफ का गोल होना चाहिए, ये आपके लाइफ का गोल होना चाहिए। जनवरी और फरवरी 2026 को you should be qualified as a chartered accountant. At that time you will be of an age of 21 or 22. I became chartered accountant at the age of 21st. I am among those chartered accountants, few chartered accountants जो 21st years के age पे pass out हुए। You can be if you clear all these exams in the first attempt, and this is possible if you have proper guidance, if you have proper coaching, and if you're under proper teachers, that is always possible. Try to understand. So I am one of those chartered accountants who became professional right at the age of 21st. So अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो obviously I can definitely say everyone can pass in the first attempt. So this will be timeline. So CA foundation in the coming November, exactly 1 साल के बाद CA inter, and then नवंबर 2025 में आपकी CA फाइनल होगी। देयर कैन बी स्टूडेंट जो बोल सकता है या पेरेंट्स पूछ सकते हैं, सर अगर कोई फेल होता है, अनफॉर्चुनेटली कोई फेल होता है तो क्या होगा? एग्जैक्टली 6 मंथ से आपकी टाइमलाइन पोस्टपोन हो जाएगी। जहां पे भी आपको ब्रेक लगेगा 6 मंथ ऐड कर दो, लाइक टाइमलाइन अकॉर्डिंगली विल चेंज, ठीक है। देन एट द CA फाउंडेशन, what kind of knowledge is expected? At a CA foundation, basic knowledge is expected. At CA inter, advanced knowledge is expected, and at CA final level, practical knowledge is expected. Try to understand, because you have undergone through 3 years articleship training, तो आपने practically सब चीजें की है, तो final level पे practical, advanced and practical knowledge is expected. At the CA foundation level, right? What is the entry point? Try to understand. You can register as a CA foundation student after passing your 10th. 10th के रिजल्ट लगने के बाद ही आप CA foundation student बोल के रजिस्टर कर सकते हो, but you are eligible to appear exam after appearing your 12th exam. तो अगर आपकी एग्जाम मई जून में होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद ही जो अटेम्प्ट आएगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, that is November. And इस बार, right, everybody knows the exams will be held in the month of April or May. So you should be, right, for filling up the form of CA foundation, you should have appeared 12th exam. You should have appeared 12th exam. तो अगर आपको 12th exam आपकी हुई है तो ही आप CA foundation exam का फॉर्म भर सकते हो, जो नवंबर में होगी in that case now. ठीक है। सो कोई बच्चे बोल सकते हैं सर हमें नवंबर का मई का एग्जाम देखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मई के एग्जाम के लिए टाइम इज वेरी लेस, एंड मे बी मई एग्जाम्स विल बी क्लैशिंग विथ योर 12th बोर्ड्स एग्जाम। एंड दूसरी बात की, अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो एटलीस्ट आप 12th अपीयर्ड होनी चाहिए। अगर आप 12th अपीयर्ड ही नहीं होंगे तो हाउ कैन यू अपीयर फॉर CA फाउंडेशन इन मई? इसलिए नवंबर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं होगा मई, इसलिए नवंबर। So you require basic knowledge that there are total 4 papers, 2 papers are subjective, 2 papers are objective. That is, it is a combination of objective and subjective papers. Exams, each exam of CA
is held twice in a year, in the month of May and in the month of November. Registration after passing 10th, right? Eligible to appear after appearing 12th examination. ठीक है? These are the subjects or these are the papers. Paper 1 is about the accounts for 100 marks. It is same as like you will be writing your 12th examination. This is descriptive, subjective type accounts paper, 100 marks. I will be taking accounts paper. Business laws is for 60 marks and BCR for 40 marks. This is paper 2. This is paper 2 for 100 marks. Say Abhishek Zavre sir and Kajal Dameja ma'am. She is a company secretary and lawyer by profession. She will be taking the second paper. Abhishek sir and Kajal ma'am will be taking the second paper. The paper 3, mathematics for 40 marks, logical reasoning 20 marks and statistics for 40 marks is an objective type paper. So जो non-math student है, उनको लगता है कि maths है and they afraid. Basically pure maths 40 marks का ही है. And again अगर आपको मुझे और बोलना है तो logarithm वगैरह ये sorry आपका ट्रिगो वगैरह इसमें नहीं है. Pure mathematics है, business point of view से mathematics है. Logical reasoning and statistics. So out of 100 marks, pure maths is only 40, 60 marks, right? Anyone can attempt. So even if you are a non-math student, then still there is no worry. Try to understand. This subject will be taught by Professor Mayuri Chede ma'am. And the last paper, the paper number 4 is business economics and BCK, business and commercial knowledge. The last paper, paper number 4, again objective type paper will be taught by me only. So paper 1 and paper 4 are taught by me. I am responsible for paper 1 and paper 2 for 200 marks. Paper 1 and paper 4. Paper 2 is taught by Abhishek sir and Kajal ma'am. Paper 3 is taught by Mayuri ma'am. For objective type papers, try to understand, there is a negative marking system. If you attempt the question, 100 marks के paper, paper 3 and paper 4 of 100 marks, you will be getting 100 questions. Each question carries 1 mark and you will be allotted 2 hours to solve 100 questions. OMR based, MCQ based questions होते हैं, you will be getting OMR sheet, आपको correct circles darken करने होते हैं. If you attempt the question, and try to understand, your answer is correct, you will get 1 mark. If you leave it a blank, आप उसको छोड़ देते हो, you will get 0 marks. But if you attempt and it is wrong, you will get a negative 0.25 marks. मतलब for every 4 wrong questions attempted, 1 mark will be deducted. Example, error. Let me share the screen again. Okay. Yeah. Okay. So, try to understand. I was talking about the marking system for the objective paper. For objective paper, suppose there are 3 questions. You attempt question 1, it is correct, you will get 1 mark. You left second question blank, you will get 0 marks. And you attempted third question, but it is wrong. So you will get 0.25 negative for that. मतलब आपके 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करेक्ट है, उसके 1 मार्क, एंड एक क्वेश्चन नेगेटिव है, उसके -0.25 मार्क्स. तो आपके 3 क्वेश्चन में से you will get 0.75 marks. So if you attempt 4 wrong questions, 1 marks will be deducted. But whenever you attempt the questions, right, it is not Jai Mata Di, जो भी लगा वो टिक करना होता है. You have to be damn sure about your answer. So obviously, right, we will be guiding you in that respect. So paper 1, paper 2 are descriptive papers of 3 hours each. Each paper is of 3 hours. You will be getting 50 minutes for reading. So your paper will start at 1:45 to 2. You will getting reading time, and then 2 to 5 you have to write the answers. The reading time is not applicable for the objective papers, paper 3 and paper 4. So I will summarize what I dictated. Paper 1, paper 2 is descriptive papers of 100 mark each. वहां पे negative marking concept नहीं है. 3 hours for writing and 15 minutes for reading. Paper 3 and paper 4 are objective papers.
no reading time, only 2 hours, not 3 hours, 2 hours. Within 120 minutes you have to attempt 100 questions of each paper with 0.25 negative marking. That is the examination structure of the CA foundation. Sir, टोटल 4 पेपर 400 मार्क के हो गए ओवरऑल, 100 मार्क्स का ईच पेपर, 400 मार्क्स का पेपर. सर, व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया? द पासिंग क्राइटेरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन ईच पेपर यू शुड गेट मिनिमम 40%. मतलब हर पेपर में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, यू शुड गेट मिनिमम 40. 100 में से हर पेपर में 40 निकलनी चाहिए. एंड पुट टुगेदर इट शुड बी 50%, मतलब 200. इंडिविजुअल पेपर में 40 एंड पुट टुगेदर 200 निकलने चाहिए. मतलब ऐसे भी हो सकता है कि हर पेपर में 40 आ गए बट टोटल होता है 160, स्टिल यू आर फेल. इंडिविजुअल पेपर में पास होना इज वन क्राइटेरिया, एंड इट इज नॉट और, एंड मतलब यू हैव टू सैटिस्फाई द कंडीशन 2. कंडीशन 1, इंडिविजुअल पेपर 40% एंड कंडीशन 2, एग्रीगेट 50% होना चाहिए. 400 में से यू शुड गेट मिनिमम 200. लाइक एग्जांपल, अगर आप हर पेपर में 50 50 50 50 लाते हो तो इंडिविजुअल पेपर में यू आर पास, एग्रीगेट 200 होता है, एग्रीगेट में भी पास, यू आर पास. बट अगर ऐसे पकड़ के चलते हो, 3 पेपर में 80 80 80 आ गए, टोटल इज 240 एंड लास्ट पेपर में 30 आ गए. सो आपकी टोटल 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 30 इज 270. टोटल इज 270. आप 200 के 70 अहेड हो, एग्रीगेट में आप पास हो, बट एक पेपर में आपको लेस देन 40 है, यू आर फेल, योर रिजल्ट इज फेल. आपको फिर से सब पेपर देने पड़ेंगे. मींस लोप-साइडेड स्टडीज ये कोर्स में नहीं चलती. यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू ईच पेपर. सो पासिंग क्राइटेरिया इज 40% इन इंडिविजुअल पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट. दिस इज एप्लीकेबल एट ईच लेवल. हर लेवल पे एप्लीकेबल है. लाइक मैंने अभी जो केसेस समझाई वो, suppose there is student A, he scored 40 marks in each paper, his aggregate is 160. Even though he is passed in each paper, individual paper में वो पास है but aggregate में वो fail है because 200 aggregate चाहिए, his result is fail. उसको सब पेपर फिर से देने. There is a student B, 54 40 43 42, हर पेपर में पास है, 40 और 40 से ज्यादा है, राइट? His total score is 179. He is passed in each paper. Passed in each paper. However, aggregate is not met. His result is fail. There is a student C, 65, 35, 56 and 80. His aggregate is 260, 236, which is more than 200. Aggregate में वो पास है, but एक पेपर में, पेपर 2 में suppose he is fail, 35, which is less than 40. His result will be still fail. उसको फिर सब पेपर देने हैं. एटी कंसेप्ट नहीं होती कि एक ही पेपर बाद में देना है, ऐसे नहीं है सीए फाउंडेशन पे. वो सीए इंटर एंड सीए फाइनल पे कंसेप्ट होती है एग्जामिशन. अभी हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं. देयर इज अ स्टूडेंट डी, उसको 40 40 40 एंड 80 आ गए. 3 पेपर पे वो एकदम लाइक ही इज ऑन वर्ज, वो एकदम क्लियर हुआ है 40 40 40 लेके. एंड लास्ट पेपर में उसको 80 है, उसका ईच पेपर ही हैज पास्ड, एग्रीगेट 200 है, हिज रिजल्ट इज पास्ड. देखो वहां पे 236 का एक स्टूडेंट है एंड डी इज अ 200 का स्टूडेंट. डी इज पास्ड एंड 236 वाला फेल है बिकॉज 236 की स्टडी लोप साइडेड है एंड डी की स्टडी कंसिडरिंग ईच पेपर राइट ऑफ इंपॉर्टेंस. सो आपको लोप साइडेड स्टडी सीए में नहीं चलती. आई विल गिव अ फॉर्मूला. मैं एक फॉर्मूला भी आपको समझाऊंगा कि कैसे पास होते हैं. Right? E 45 56 60 55, each paper he has passed, his total score is 216, aggregate passed, each paper passed, दोनों conditions met, he is passed. मतलब दोनों, हर पेपर में 40 एंड ओवरऑल 200 होना चाहिए तो आप पास होते हो. तो एक सिंपल फॉर्मूला मैं बोलता हूं, फॉरगेट द 40%. ऐसे मानो कि हर पेपर में 50% चाहिए तो ऑब्वियसली अगर हर पेपर में 50%, इफ यू स्कोर, एग्रीगेट अपने आप 50% हो जाएगा. दिस इज फॉर्मूला 1 कि हर पेपर में मुझे मिनिमम 50 चाहिए तो मेरा 50% एग्रीगेट भी बनता है. या दूसरा 40:60. मैं जनरली बच्चों को बोलता हूं 40:60.
मतलब जो पेपर्स, देयर आर 4 पेपर्स, तो सब पेपर्स तो डिफिकल्ट नहीं हो सकते, सब पेपर्स तो डिफिकल्ट नहीं हो सकते, कोई पेपर्स आपके चॉइस के रहेंगे, आपके प्रेफरेंस वाले रहेंगे, राइट, आपके टेस्ट में रहेंगे एकदम, तो उनमें 60 आना चाहिए। एंड जो आपको वीक, जिसमें आप वीक हो, आपको जो डिफिकल्ट जाते हैं, उनमें 40 आनी चाहिए। दो पेपर में 60-60, दो पेपर में 40-40, स्टिल यू मेक 200, 60:40। लाइक बच्चों को अकाउंट्स, इको बहुत अच्छा जाता है सपोज, तो उनमें 60-60 लाओ। लॉ एंड मैथमेटिक्स, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, मैथ्स डिफिकल्ट जाता है सपोज, लॉ फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, राइटिंग वाला पेपर है, राइट, सपोज दोनों में 40-40 लाओ, यहाँ पे 60-60 लाओ, स्टिल यू आर पास। सो वन फॉर्मूला कैन बी 60:40, या अदर फॉर्मूला इज 50% हर पेपर में लाने। पास होना डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखते हो वैसे 50% इन ईच पेपर इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, it requires efforts, it requires guidance, and it requires personal attention. Try to understand, तब ये पॉसिबल होता है। बिकॉज जहां पे बच्चे फेल होने का आप सुनते हो, वहां पे बच्चे पास भी होते हैं, ये समझ लेंगे। देन द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सर कितना खर्चा आता है, बिकॉज एवरीवन कॉमर्स का है तो ऑब्वियसली पूछेगा सर कितना खर्चा है। सो मैं आपको एक ओवरऑल एस्टिमेट दे रहा हूं, दिस एस्टिमेट इज ऑफ 4 years। Overall, your total expenditure in next 4.5 years, after 12 की बात कर रहा हूं, over next 4.5 years will be 3,50,000, 3,50,000। I have not considered hostel fees वगैरह, but 3,50,000 में इस कोर्स का खर्चा बोल रहा हूं, expenditure। Over 4.5 years, you will be incurring expenditure of 3,50,000, including coaching, including institute registration, and institute's other programs. 3,50,000 over total expenditure, not in one stroke, but over a period of time of 4.5 years. But during your last 3 years, आपकी जब आर्टिकलशिप पे करते हो, you get stipend, and मैंने स्टाइपेंड का भी एस्टिमेट दिया है, ये मिनिमम स्टाइपेंड से पुणे में every article, like CA student get this much article, like stipend, वो मिनिमम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिनिमम स्टाइपेंड मैंने दिया है। इन द फर्स्ट ईयर मिनिमम 3,000, इन द सेकंड ईयर मिनिमम 4,000, इन द थर्ड ईयर मिनिमम 5,000। इफ यू टेक मिनिमम स्टाइपेंड 1,44,000, your net cost over 4.5 years is 2,06,000। if you divide it by, right, if you divide it into months, it is 3,815 rupees per month। इससे सस्ता चीपेस्ट कोर्स हो ही नहीं सकता, एंड द रिटर्न्स आर वेरी हाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड ये जो स्टाइपेंड है ना, देयर आर स्टूडेंट्स, आई कैन यूज सम स्टूडेंट्स हु आर अर्निंग 15,000 स्टाइपेंड पर मंथ। अगर इफ आर एक्चुअली एलिजिबल, you are develop your skills, you are good, and if you get selected in some of the firms, obviously we will help you to. The minimum stipends given by the firms is 10,000, 15,000, 20,000 as well. तो आपका ओवरऑल, तो अगर आपका नेट एक्सपेंस निकालते तो राइट, यू विल एंड अप एट सरप्लस, इट वोंट बी डेफिसिट, इट विल बी सरप्लस। अगर आप देखते हो तो मैं मिनिमम स्टाइपेंड दिया एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइन, पुणे में इससे ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है। सो अगर आप ऑन द लाइक एक्सपेंडिचर बेसिस देखते हो, इफ यू कंपेयर विद अदर कोर्सेस, आप डेफिनेटली देख सकते हो दिस इज द लीस्ट कॉस्ट कोर्स गिविंग यू हायर रिटर्न्स। आई डोंट नो कितने लोगों को इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पता है, ऑप्टिमम फॉर्म कंसेप्ट पता है, राइट, लोएस्ट कॉस्ट वाला कोर्स है ये, एंड रिटर्न्स मैक्सिमम है। दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट एनीवन कैन अफोर्ड बेसिकली। अनदर myth, try to understand, if CA results are very less, बहुत लोग बोलते हैं सर CA रिजल्ट बहुत कम लगते हैं, सर 2 to 3% हमने सुना है, that is not the fact, it is a myth। try to understand, the actual results इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से मैंने लिए, try to understand, are between 35 to 40% at CA फाउंडेशन लेवल, वही 30 to 35% होता है CA इंटर लेवल, एंड 25 to 30% होता है एट ए फाइनल लेवल। 25 to 30% CA फाइनल, 30 to 35 at CA इंटर लेवल, एंड 35 to 40% at CA फाउंडेशन लेवल, राइट। मराठी त्याला चायन म्हणतात, चायन, राइट। यू हैव टू गो थ्रू द 3 stages,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ पे देखते हो, इफ यू कैन ऑब्जर्व, May 18 में it was around 20%. ये first attempt था CA foundation का, and very few students actually appeared for that. The major attempts used to be November. Major attempt because 12 के बाद maximum students सब November attempt देते हैं, तो you will get best results in the November exam. सब fresh student रहते हैं. Generally May में कौन से बच्चे आते हैं जो November में फेल हुए वो, या जिन्होंने लेट CA कोर्स ज्वाइन किया वो वाले. So number is very less and वहां पे रिजल्ट भी कम रहता है. बट अगर आप 12 के बाद जो बच्चे सीए कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर उनके बारे में अगर देखते हो, दे जनरली अपीयर इन द नवंबर, एंड यू कैन सी इन नवंबर 2018 द रिजल्ट वाज अराउंड 45%, एंड इन नवंबर 2019 रिजल्ट वाज अराउंड 35%. नवंबर 20 का भी एग्जाम हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नवंबर 20 का भी एग्जाम हुआ है. मे, आप बोलोगे सर आपने 20 के एग्जाम्स के नहीं दिए. May 20 एग्जाम गॉट कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. वो नवंबर में हुआ, एग्जाम दिसंबर में पोस्टपोन होके इंस्टीट्यूट कंडक्टेड द एग्जाम. सो आपके एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाले, आपके एग्जाम नवंबर में ही होगी. ये पहले दिमाग में रखना. आप प्रिपरेशन कल से करो, प्रिपरेशन 2 मंथ के बाद करो या करो मत, एग्जाम नवंबर में ही होने वाली. सो उसके रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, इसलिए मैंने नवंबर 20 का यहाँ पे डेटा नहीं दिया है. So you can see that generally trend is 35 to 40%. So that is all about the CA course. Now what about the Hackathon camp branch? Try to understand. We at a Hackathon, try to understand, we have a set of faculties who have a diverse experience. Like example, I am a chartered accountant. Abhishek sir is a chartered accountant. Kajal ma'am has a law background. She is a LLB. She has done LLB and CS. Mayuri ma'am is a College of Engineering pass out student. She is an engineer. She is a MTech and she teaches mathematics. So try to understand, we have the set of the faculties who are equipped for their each subject. The camp branch was founded by Abhishek sir, myself, Karoshi sir, Mayuri ma'am and Kajal ma'am. We all founded the camp branch. We are known for what we provide to the student. This is very important because you have to take informed decision. You have to take informed decision. We have the set of faculties who have experience in their respective subjects, quality in whatever we do. We take regular tests. Even during this pandemic, we used to take regular tests. अभी जो November 20 की एग्जाम हुई, I can tell you, we conducted 42 tests और हमने उनको चेकिंग भी, सेल्फ असेसमेंट भी करवा के दी. 42 टेस्ट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. बच्चे घर से ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे थे. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यस, मतलब हम आपको ऐसे पेन ड्राइव में या ऐसे पीपीटी पे नहीं सिखाएंगे. देयर विल बी ए डिजिटल ब्लैक बोर्ड थ्रू विच विल बी टीचिंग यू. सो जैसे आप क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड्स पे लिखते वैसे using like gadgets like iPad वगैरह, we will be teaching you through digital blackboards. The faculties are always available for doubt solving. That is the best thing at camp branch. You can see the faculties जो भी है, they are the young faculties, energetic faculties having the experience in their field, and these faculties are available for the students. As per me, what is most important for a professional courses is the personal guidance, the bonding with the teacher. Teacher must know the name of the student. Teacher must know the what is the weakness and what are the strength of the student. क्या कहाँ पे उसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसने क्या करना चाहिए, हाउ ही राइट्स. ये पॉसिबल है, देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू कैन इजीली इंटरेक्ट विद द टीचर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एक चीज होती है एक्सपीरियंस एंड उसके साथ आता है कि आर द टीचर्स अवेलेबल फॉर द डाउट सॉल्विंग. खाली यहाँ पे आके टीचर्स टीचिंग नहीं करते. कैंप ब्रांच में टीचर्स आर आल्सो अवेलेबल आफ्टर द लेक्चर. दे वेट जब तक स्टूडेंट के डाउट सॉल्व नहीं होंगे, दे विल नॉट लीव फ्रॉम द क्लास. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू कैन कॉल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. क्लासेस होने के बाद एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का जो टाइम होता है, यू कैन कॉल एनी फैकल्टी. आई कैन बेट यू कैंप ब्रांच के ही टीचर्स रहेंगे. वो भी हैकाथॉन की बात कर रहा हूं मैं. हैकाथॉन कैंप ब्रांच, वी शेयर आवर पर्सनल नंबर. हमारे पास 2 नंबर नहीं होते, स्टूडेंट के लिए एक और बाकी एक, जो स्टूडेंट का नंबर ही नहीं उठाना है.
ऐसे नहीं, we share our personal number with the parents as well as students. They can call us at any point of time. They can share their doubts. We will solve them. We are ready to help you. ऐसे भी इंसिडेंट्स है which I would like to share कि बच्चों जब रात को भी 12-1 बजे मुझे मैसेज आता है, if I am awake, sir can we call you, and if possible I take them their calls and I guide them. We solve the doubts. Same with the other faculties. So जब भी आप क्लासेस करोगे कहाँ पे भी करो, बट वहां पे क्लासेस करो जहां पे आपकी वैल्यू की जाती है, आपके टीचर्स आपके लिए रेडी रहेंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम के पीरियड में या एग्जाम के पहले जब आप सिखाना एक पार्ट है एंड पर्सनल मेंटोरिंग एक अदर पार्ट है, एंड प्रोफेशनल कोर्स में जहां पे इतना बर्डन रहता है वहां पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टीचर्स का गाइडेंस. टीचर्स शुड बी अवेलेबल. मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ, आई हैव बीन लाइक आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां पे गुरुकुल काइंड ऑफ स्कूल होते थे, जहां पे हमारे टीचर्स हमारे साथ हमेशा रहते थे. सो आई बिलीव इन दैट टीचर्स शुड बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट, राइट, इवन आफ्टर द लेक्चर्स, ड्यूरिंग देयर एग्जाम, इवन आफ्टर एग्जाम. सो ये इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज फैकल्टी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर डाउट सॉल्विंग. ये मैंने खाली लिखने के लिए नहीं लिखा है. ऑल दीज थिंग्स वी एक्चुअली डू एंड देयरफॉर दीज थिंग्स आर हियर. Proven results in the 12th and the foundation. Yes, we have rankers. Parents teachers meetings. We do conduct parent teachers meeting every year. हर बैच में हम वो conduct करते हैं. We share the results and everything. We also take the queries of the parents. And obviously there are some picnics, day celebration and other activities for the team building and everything. So all these things we provide at a camp branch. जैसे मैंने बोला सीए फाउंडेशन पे 35 to 40% पासिंग परसेंटेज है एट आईसीआई पान इंडिया. एट कैंप ब्रांच वी हैव बीन गिविंग 65 to 70% पासिंग रिजल्ट. आई कैन प्रूव विद द नंबर्स. मेरे पास हर एक के रिजल्ट्स हैं. ये these numbers are actual numbers. 65 to 70% स्टूडेंट्स जो कैंप में एडमिशन लेते हैं एंड जो लेक्चर्स करते हैं कैंप से, 65 to 70% स्टूडेंट्स पास. And these, try to understand, is the efforts of teachers as well as student. And ये जो bonding होती है ना, ये bonding आपको बाहर कहाँ पे नहीं मिलेगा. जो environment आपको कैंप में मिलेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ एज ए पेरेंट आप क्या चाहते हो कि आपके बेटे पे या बेटी पे देयर शुड बी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. देयर विल बी समवन हु विल पिक अप योर कॉल्स. पेरेंट्स के कॉल भी उठाना चाहिए. अगर ऐसे है तो ही क्लासेस करो. एंड आई कैन गारंटी यू कि ये हम लोग करते हैं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं. अगर नहीं करते तो आई कैन नॉट लाइक से दिस. खाली बोलने के लिए चीजें नहीं. यू कैन आस्क, यू कैन गो एंड चेक गूगल पेज पे एकतम कैंप डाल दो ना, कैंप एकेडमी, एंड गो एंड चेक द फीडबैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट ने खुद होके डाले, हमने उनको डलवाने को नहीं बोला है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर नहीं करेंगे तो नहीं बोलेंगे, सिंपल है. 65 to 70% रिजल्ट ऐसे नहीं आता. हम खाली रैंकर्स नहीं दिखाते, वी ऑल्सो शो द रिजल्ट. रैंकर तो हर कोई दिखाएगा, बट रिजल्ट कितना है? 65 to 70% passing result in each batch. Then these are some of the students taught by the faculties here. Can say these are the rankers. Now CA at CA foundation level, right? Rankers are not declared. So right, उन्होंने बंद किया रैंकिंग डिक्लेयर करना. CA इंटर एंड CA फाइनल लेवल पे रैंकिंग डिक्लेयर होती. पहले 2-3 अटेम्प्ट में उन्होंने रैंकर्स अनाउंस किए थे, तब के ये रैंकर्स है. Then these are the set of the faculties. Abhishek sir, who will be taking law along with some chapters of the accounts, and he will be taking marathon lectures after your syllabus, marathon lectures of the law and accounts. Abhishek Zavre sir, right? I will be taking, I'm Prasad Zavre, right? I will be taking accounts and economics. So I will be sharing accounts with Abhishek sir, and I am responsible for entire economics. So almost 200 मार्क्स के पेपर्स लाइक मेरे पास रहेंगे. एंड मैं ये चीज श्योर करता हूं कि मेरे पेपर में ही बच्चे को मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, तो उनका एग्रीगेट का टेंशन ही ना रहे. सो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. देन द नेक्स्ट इज लाइक द मैथमेटिक्स इज टेकन बाय मयूरी मैम. शी इज COP passed out student. One of the best thing about her is her math, like the way of her teaching and the way she clears the concept is even understood by non-math students. Math students का तो they always appreciate her.
वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैकल्टी, और इतना मैथ्स जबरदस्त, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इतना जबरदस्त मैथ्स कोई नहीं लेता है। एंड इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के लिए टीचर्स आपके कॉल उठाए, बिकॉज जब हम घर पे सॉल्व करने जाते हैं होमवर्क या सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई तो हमारे डाउट सॉल्विंग के लिए होनी चाहिए। शी इज द राइट पर्सन, राइट कैंडिडेट, teaches mathematics conceptually rather than just mugging up the techniques. And there is a special attention for the non-math students. We have separate WhatsApp group, we take separate sessions for them. And the way she teaches mathematics makes it more interesting. Try to understand. So she will be responsible for paper 3, mathematics, logical reasoning, and like statistics. Professor Kajal Damecha, she is LLB, she is CS, and she is a graduate. She will be teaching 3 laws along with BCR, business correspondence and reporting. Being lawyer, being like background of the law makes her that BCR, business correspondence and reporting, like a scoring subject for the students, because वो actually 40 marks, right? बच्चे उसको casually लेते हैं, उनको लगता है हमें लेटर राइटिंग आता है, हमें ड्राफ्टिंग आता है, हमें लीगल ड्राफ्टिंग आ सकता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बट वैसे होता नहीं, वही पेपर डिफिकल्ट आता है। बट बिकॉज ऑफ हर लाइक बैकग्राउंड ऑफ द लॉ एंड द वे शी टेक्स गेट्स इट डन इन द क्लासेस, ये सब्जेक्ट बच्चों के लिए स्कोरिंग बन जाता है। सो दीज आर द सेट ऑफ द फैकल्टीज एट कैंप ब्रांच। हाउ द बैच विल बी कंडक्टेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो अभी 12th देने वाले इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, उनके लिए हाउ द कोर्स विल गो ऑन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड, जो सबके लिए वेट, एवरीवन इज वेटिंग फॉर दिस। वी विल बी स्टार्टिंग बैच इन द फर्स्ट डे ऑफ द February till their boards means we will be obviously giving some preparation leave, like boards के पहले you will be getting proper leaves, even during boards you will be getting holidays for your boards के पहले and during boards you will be getting off for the lectures। अभी हम 1st February से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। the batch will get completed in the October, नवंबर में आपकी एग्जाम होगी। as your exams are getting postponed, अप्रैल मई में एग्जाम्स होने वाले हैं, जून में क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, रिवीजन खत्म नहीं होगी, आपका प्रिपरेशन खत्म नहीं होगा, एंड नवंबर का एग्जाम ऐसे ही चला जाएगा। सो कंसीडरिंग हम February में क्लासेस स्टार्ट करें, February, March and some days of April, depends examination schedule, will be taking 3 hours daily. What will be the timing? Timing will be as per the convenience of the students. अगर आपके स्कूल्स February में कंटिन्यूड है तो जनरली हम इवनिंग में क्लासेस लेंगे, सो सबके लिए कंफर्टेबल रहे। लास्ट वीक ऑफ जनवरी वी विल बी सर्कुलेटिंग द फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स, उसमें हम उनके टाइम्स ले लेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम क्लासेस के शेड्यूल ऐसे रखेंगे सो किसी के लिए भी इनकन्वीनियंस ना हो, नो वन शुड मिस द लेक्चर। सो 3 hours डेली टिल देयर बोर्ड्स, एंड हम वही सिलेबस कवर करेंगे जो उनके 12th के बोर्ड्स में भी है। उससे फायदा क्या होगा, राइट? उनके बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन होगा, एनसीए फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन होगा। इन ए सेम टाइम हम उनका बोर्ड्स भी करवा के लेंगे एंड हम उनका फाउंडेशन भी करवा के लेंगे टिल देयर बोर्ड्स। आफ्टर बोर्ड्स ऑब्वियसली वी नीड टू इंक्रीज द टाइम। आफ्टर बोर्ड्स टिल 30th September सिलेबस खत्म होने तक वी विल बी टेकिंग मिनिमम 7 hours पर डे इंक्लूडिंग संडेज, मैं पहले ही बोलना चाहता हूं। एंड राइट, दीज मेनी hours are required. We are not taking 5 hours. Try to understand. Other academies may be taking 5 hours, but in camp we believe कि maximum तो classes में होना चाहिए। That there should be more questions which will be solved. खाली concept बोल के भगाना concept नहीं हमारे इधर। Concept के साथ उसके actual practice भी होनी चाहिए। There are some students, you can go and ask them the amount of the questions that are being solved in the classes of all the subjects, and the amount of the practice and self-take like practice tests, those are being solved, right, are actually tremendous, and it helps them in the final exam. It boosts the confidence. So 7 hours per day. October से 12th October we take marathon lectures, पूरे दिन हमारे marathon lecture चलते हैं, and then 15th October to 31st October we take test series, 100 marks test series, weekly test तो होते हैं, and last में we take 2 test series of 100 marks,
वो प्रॉपर विथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा अप टू योर 12th बोर्ड्स। 12th बोर्ड्स के पहले हम छुट्टी देंगे, 12th बोर्ड्स के टाइम भी आपको छुट्टी मिलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बोर्ड्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। हम 3 आवर्स डेली लेंगे, प्रेफरेबली इन द इवनिंग, प्रेफरेबली इन द इवनिंग बोल रहा हूं। अगर मॉर्निंग में सबको पॉसिबल तो मॉर्निंग ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। 3 आवर्स एंड हम वही सिलेबस कवर करेंगे जो आपके 12th से मैच होता हो, मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो जाएगा। You will get proper holidays for your boards. After boards, we will be increasing the time to 7 hours daily. There will be marathon lectures taken at camp branch, and there will be test series in the month of October. And in the November, you will be appearing for your foundation. इतना पूरा preparation के बाद, there are very less chances of the failure. इसलिए वो 70% result है. Try to understand. Then, what is the teaching methodology? For every chapter, we take pre-preparation lectures. Then there is a classroom teaching. After that, we take revision and everything, post-preparation, test and analysis. And at the end, we take test series. अगर ये पूरे stage के through अगर कोई बच्चा sincerely करता है and under proper guidance and under proper monitoring, and इसका parents को भी inform किया जाएगा. There will be separate group for the parents. WhatsApp पे अलग group रहेगा. इतने पूरे प्रोसेस के थ्रू अगर कोई सिंसियरली करता है विद सिंसियर डेडिकेशन ऑफ द टीचर्स एज वेल ऑब्वियसली, तो सक्सेस इज डैम श्योर। व्हाई कैंप ब्रांच स्पेसिफिकली? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज माय टेक। जब मैं खुद को इवैल्यूएट करता हूं, कैंप ब्रांच को इवैल्यूएट करता हूं, लिमिटेड एडमिशंस आर गिवन रिजल्टिंग इन पर्सनल एडमिशंस, पर्सनल अटेंशन। वी गिव लिमिटेड एडमिशंस। हमें प्राउड नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें हर स्टूडेंट का इन एंड आउट पता होना चाहिए। वो क्या करता है, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, किसके साथ रहता है, कितनी पढ़ाई करता है, क्या करता है, एवरीथिंग। यू कैन आस्क मी, आई कैन टेल यू हिस्ट्री। कभी कभी तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा जितना मुझे पता होता है बच्चों के बारे में। सेम विद द अदर फैकल्टीज। easily reachable faculties, helping students to get their doubts solved. You can call any faculty at any point of time. I guarantee you they will pick up call. At least they will revert you. After their lecture they will call you. फैकल्टी खुद होके कॉल करके बच्चों को पूछती यू हैव एनी डाउट। ये सर्विस आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज कैप्सूल सेशंस, वी टेक, मी एंड अभिषेक सर टेक सम प्रैक्टिकल सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स related to the practical life and everything. There are concepts and practice in the class. खाली concept नहीं है, we also get practice. I know how to swim, but जब तक मैं स्विमिंग नहीं करूंगा, जब तक मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, वो उसमें मेरी एक्सपर्टाइज नहीं आएगी। मुझे पता है कैसे साइकिल चलानी है, बट जब तक मैं खुद साइकिल नहीं चलाऊंगा तब तक मुझे वो नहीं समझेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। I believe in that and we get it done in the class because not every student is sincere। वो घर पे जाके करेगा, तो घर से बेटर है घर पे करने वाले 2 घंटे, क्लास में ही करो 2 घंटे, हमारे सामने करो, हम यहाँ पे बैठेंगे, हम आपसे करवा के लेंगे। घर में ही करने वाले हो ना, यहाँ पे करो, हमारे सामने करो, तो हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नींद अच्छे से लगेगी। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू ICI, जो भी होता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, सेफ एग्जाम फॉर्म फिलअप वगैरह हो सकता है। वी हेल्प द स्टाफ हेल्प्स यू इन ऑल द मैटर्स, एंड इन सब चीजों की वजह से दिस कैंप ब्रांच राइट इज रियली अ गुड चॉइस फॉर एवरीवन। जो यहाँ से पास आउट होता है राइट, यू कैन आस्क देम, यू कैन टेक देयर फीडबैक। मैंने बोला गूगल पे जाके चेक करो, गूगल पे एकतम लाइक कैंप ब्रांच डालना, वहां पे आपको स्टूडेंट्स के राइट रिमार्क्स मिलेंगे, रीड देम, यू विल अंडरस्टैंड। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ये सर्विसेज सच्ची में मिलने वाली है तो ये एकेडमी ज्वाइन करो, एंड आई कैन गारंटी यू ये सब चीजें यहाँ पे होती है, नहीं तो मुझे पकड़ लेना। आगे, वी आर लोकेटेड एट साधु वासनी चौक, परमा ट्रेड सेंटर, नियर पुणे स्टेशन। I can take the doubts. If anyone has doubt, they can raise their hand, I will unmute them. Or if okay, there is one question, sir, how the classes will be conducted? Till your boards will be taking online session। जैसे आज का लेक्चर हुआ, आज का जो सेशन हुआ वैसे ही हर लेक्चर होगा up to your 12th boards, and after your 12th boards we will be providing you both face to face as well as online services। जिनको face to face आना है वो face to face आ सकते हैं,
जिनको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आफ्टर योर 12th बोर्ड्स एग्जाम। दूसरी बात एज वी आर प्लानिंग कि कोई बच्चों को फेस टू फेस बुलाना है, वी आर गिविंग एडमिशन टू लिमिटेड स्टूडेंट्स ओनली। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट, यू कैन टेक एडमिशन बाय कमिंग इन ऑफिस। आप ऑफिस में आ सकते हो या यू कैन ट्रांसफर द फीस ऑनलाइन, राइट। यहाँ पे जो नंबर दिया है 8605668844, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या आई विल ऑल्सो शेयर माई नंबर। मैं यहाँ पे सबके लिए मेरा नंबर टाइप करता हूँ, राइट। चैट बॉक्स में एवरीवन विल गेट, लेट मी जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर माई नंबर एज वेल। मैक्सिमम लोगों के पास मेरा नंबर है, स्टिल आई विल शेयर माई नंबर 8390542401। You can see my number in your chat box. You can call me. You can take admission online. आपको यहाँ पे भी आने की जरूरत नहीं है। बट जैसे मैंने बोला अप टू 12th हम ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे। हर लेक्चर के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, वो लेक्चर एकत्तम ऐप पे अपलोड होता है, सो दैट यू कैन सी एट, मतलब आप ऑनलाइन भी करोगे एंड सपोज किसी का लेक्चर मिस होता है किसी कारणवश, he can go and check एकत्तम ऐप, लर्निंग ऐप, वहां पे वो लेक्चर अपलोड किया होगा। यू कैन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, नो लिमिटेशन। आपको कोई कंसेप्ट रिवाइज करनी है, आप लेक्चर किया है, कंसेप्ट रिवाइज करनी है, आप जाके चेक कर सकते हो। जो भी हम क्लास नोटिंग लिखते हैं वी शेयर विद द स्टूडेंट्स। आपको जो नोट्स है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको नोट्स मिलेंगे। जो पुणे के बच्चे, पुणे पीसीएमसी, दे हैव टू कम एंड कलेक्ट द नोट्स फ्रॉम द क्लास, एंड जो पुणे के बाहर के उनको हम कुरियर कर देंगे। सो अप टू 12th ये पकड़ के चलो हम ऑनलाइन ही करने वाले, अब आफ्टर 12 बोर्ड्स ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। ओके, गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, आई वांट टू गेट इनटू मर्जर एंड एक्विजिशन, सो शुड आई कंसीडर सीए? ऑब्वियसली देखो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वगैरह ये राइट कौन करते हैं? फाइनेंशियल, लाइक कौन करते हैं ये? लाइक द पर्सन्स हु हैव क्वालिफिकेशन इन द लाइक फाइनेंस। तो इसके लिए अगर आप देखते हो सीए इंटर में एंड सीए फाइनल में, यू विल गेट ए लॉट ऑफ, देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अमालगमेशन के रिलेटेड, देयर आर चैप्टर्स रिलेटेड टू रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, मर्जर्स। आप लॉ में सीखोगे, कंपनी लॉ में भी सीखोगे ये सब चीजें। आपको लॉ का भी एंगल मिलेगा, आपको अकाउंटिंग भी एंगल मिलेगा, एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट इनटू दैट जॉब। एंड अगर आप कोई किसी सीए फर्म में जाते हो, बिग फोर में वगैरह, मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में, द रिक्वायरमेंट इज यू शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which college degree program would you suggest along with CA course? Technically only BCom is possible. You can do any course along with CA. You can do any course along with CA, preferably chartered, along with chartered accountant, right? Chartered accountancy course BCom करना चाहिए, बाकी course technically possible नहीं है। So we recommend students to go for BCom, and that too internal, and we recommend you should do BCom with a college which is affiliated to Pune University. I will again repeat, वैसे भी हम आपको गाइड करेंगे, राइट, आपके 12th एग्जाम्स के बाद जब आपका रिजल्ट्स आउट होंगे, वी विल गाइड यू कौन से कॉलेज आपके लिए ठीक हो सकते हैं एक्सेट्रा। बट वो कॉलेज करो जो पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, बीकॉम। आप बाकी बीबीए बीएफटी के टाइमिंग्स क्लैशेस विद योर आर्टिकलशिप टाइमिंग, या तो आपको सीए ड्रॉप करना होगा या तो बीबीए बीएफटी ड्रॉप करना होगा अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन सर्च कर रहे हो तो। एंड सीए में रिक्वायर्स डेडिकेशन, एक साथ 10 चीजें नहीं कर सकते। सीए के लिए आपको पूरा फोकस सीए पे होना चाहिए, एंड सीए का ही सिलेबस बीकॉम में होता है, तो आपको अलग से कुछ एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई विल सजेस्ट यू ओनली बीकॉम। आई डिड बीकॉम along with my CA. Is American CA better than Indian CA? No, not like that. Not like that. Definitely not. इंडिया में अगर आप बात करते हो तो इंडियन सीएस ओनली है, बिकॉज वी आर गवर्न बाय इंडियन एक्ट्स एंड नॉट अमेरिकन एक्ट्स। लॉ ऑफ लैंड एप्लीकेबल होता है, एंड इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गवर्न बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इंडिया में इंडियन चार्टर्ड की डिमांड रहेगी, एट द सेम टाइम इंडिया में इंडियन चार्टर्स को बाहर डिमांड है। ये अगर हम इफ यू आर ए सीए फ्रॉम इंडिया, आपको बाकी जो सीपीए वगैरह एग्जाम्स है ना, उनके 3 या 4 ही पेपर देने होते हैं।
बट अगर उनको इंडियन सीए करना है तो उनको फाउंडेशन से स्टार्ट करना होता है। उनके सीपीएस को अगर इंडिया की डिग्री चाहिए उनको फाउंडेशन से स्टार्ट करना है, बट हमारे सीएस को अगर उनका सीपीए वगैरह करना है आफ्टर पासिंग करते हैं लोग। I have done ACCA. I have done ACCA after passing CA because right it मैं यूके में था कुछ कुछ मंथ्स के लिए काम के सिलसिले में। आफ्टर पासिंग में सीए एक्सेंचर से मुझे भेजा गया था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने किया ना, बट मुझे 3 ही पेपर थे, 3 ही पेपर में मुझे वो डिग्री मिल गई बीइंग एन इंडियन सीए। सो वैल्यू ऑफ इंडियन सीए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी अदर like CPAs or CAs. Then let me take another question. Okay, the question is very interesting, but लिखा है कि सर आई राइट मेरे दोस्त है जो यहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस करे, they have given you good feedback about the academy, Cambridge specifically. अच्छा, it's not question, it is compliment. Okay, thank you. I thought it is a question. So any question, if any parents or any student has a question, जो भी questions थे मैंने लिए हैं। ओके सर, अभी तक हमारे टाइम टेबल्स डिक्लेयर नहीं हुए तो क्या होगा? देखो, तुम्हारे जैसे भी टाइम टेबल्स डिक्लेयर होंगे वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। वी आर स्टार्टिंग बैचेस इन द फेब्रुआरी मार्च में तो आपके एग्जाम्स होने वाले नहीं, दैट इज डैम श्योर। अप्रैल में भी एग्जाम्स होंगे, तो जनरली लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होंगे, मई में एग्जाम्स होंगे एंड मे बी सम डेज ऑफ जून। तो अकॉर्डिंगली वी विल गिव यू हॉलीडेज राइट, आपके बोर्ड्स के पहले एंड ड्यूरिंग योर बोर्ड्स। बट जैसे बोर्ड्स खत्म होंगे मे बी विद इन 1 or 2 days वी विल अगेन रिज्यूम विथ मोर नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, ओके। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द डाउट्स राइट, I have covered all the doubts. If any doubts before I end for the day, right? Any doubts? Thank you for everyone for the patient listening. This is important. This course is really good. It requires hard work. Try to understand. If you are going to take admission in Cambridge, मैं पेरेंट्स से खाली एक रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टूडेंट घर पे क्या करता है उसके बारे में मुझे अपडेट चाहिए। मेरे सामने जो है तो मैं देखता हूं, आप खाली मुझे अपडेट करते चलो एंड कॉल मी ऑन संडेज। हर संडे को पेरेंट्स ने मुझे कॉल करना चाहिए एंड आई एम अवेलेबल फॉर द पेरेंट्स। मैं संडे को मेरा आफ्टरनून सेशन में पेरेंट्स के लिए रखता हूं। दे शुड एटलीस्ट आस्क, एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं, बाकी तो हम कर लेंगे। दे शुड एटलीस्ट आस्क कि उनका बच्चा कैसे कर रहा है, उसे हमें भी लगता है कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट, बिकॉज मेरे पापा वैसे करते थे जब मैं स्टूडेंट था, वही मैं बाकी आप पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करूंगा राइट। उससे हम पे भी चेक रहता है, हमें भी अच्छा लगता है। एंड अगर आप सिंसियर हो एंड आपका सच्ची में ड्रीम है तो हैव ट्रस्ट इन मी, हैव ट्रस्ट इन एकतम Cambridge, right? We will definitely deliver you. We will give you the value for the money that you have paid. You will get better than, there is a concept of consumer surplus in the economics. You will definitely get the consumer surplus in the Ekatvam Cambridge. On this note, right? Acha, okay, there is another question. Is there any recruitment camping for the jobs after completing CA? Okay. Institute of Chartered Accounts of India जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है, दे कीप प्लेसमेंट कैंपस, उनके कैंपस होते हैं एंड उस कैंपस के थ्रू आपको जॉब भी मिलते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, वो आपके रिजल्ट्स के बाद होते हैं, उसके पहले आपको जॉब लग जाती है। ये भी फैक्ट है, आपको कैंपस में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 80% बच्चों को पहले जॉब मिल जाता है। आज मेरे मोबाइल में 4-5 जॉब्स अवेलेबल, लेकिन सीएस नहीं है। मुझे आए कि अगर आपके कोई रिकमेंडेशन में तो बोलो, बट बच्चे या पास आउट मतलब राइट जॉब्स है लेकिन कैंडिडेट्स नहीं है। तो कैंपस रखते हैं, आईसीआई कैंपस रखती है, पुणे में कैंपस होते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बॉम्बे में कैंपस होता है, नागपुर में कैंपस होता है। यू कैन अप्लाई एनी प्लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो सीए पास होने के बाद। बट उसके पहले ही मैक्सिमम बच्चों को जॉब लग जाती है। सो दैट वाज योर आंसर। देन अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बारे में सर, हम रजिस्ट्रेशन कब करें? रजिस्ट्रेशन अब आप रजिस्ट्रेशन आज कर सकते हो, नवंबर एग्जाम के लिए आज कर सकते हो।
कल कर सकते हो। 30th जून इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट 30th जून तक नहीं रुकना है। इन दिस मंथ इटसेल्फ, राइट, यू हैव टू रजिस्टर विद द ICI न्यू दिल्ली। अगर उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल शेयर द प्रोसीजर। वो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं होती है, एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। यू रिक्वायर 10th पास आउट सर्टिफिकेट और मार्कशीट। आपको लाइक डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर कोई लिविंग सर्टिफिकेट है, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर 10th के मार्कशीट पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं तो लिविंग सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। 12th का मार्कशीट इज नॉट मैंडेटरी, वहां पे 12th का मार्कशीट भी है फॉर्म में, इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट। आप बिकॉज इट राइट इट इज नॉट कंपल्सरी फील्ड राइट नाउ, बिकॉज आप 10th के बाद रजिस्टर कर रहे हो। विद दैट 10th मार्कशीट, एनी एलसी कभी का भी चलेगा जहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। थर्ड, योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड फोर्थ योर साइन। ये सब आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, राइट, आपको अपलोड करने होंगे। द फीस ऑफ दैट यू हैव टू पे टू द ICI इज 9,000। आप ऑनलाइन पेमेंट करो। विद इन 3 to 4 days यू विल गेट ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको ईमेल आईडी पे सब कुछ चीजें आ जाएगी। एंड इन नेक्स्ट 3 to 4 days यू कैन रिडीम योर बुक्स फ्रॉम द ICI वेबसाइट। आपको कहाँ पे भी नहीं जाना था, एवरीथिंग यू गेट एट होम। बुक्स भी आपको घर पे डिलीवर होते हैं। Besides that, we provide class notes. We right after your admission in जब आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे in the first week of the February, हम आपको नोट्स डिलीवर करेंगे, ठीक है। So this is all about the registration. क्लासेस, अच्छा, there is question सर, हम एडमिशन कब तक लेंगे? For your information, जो मेरे यहाँ पे जो 12th के बच्चे थे ऑलरेडी टेकन द एडमिशन, तो ऑलरेडी सीट्स आर वेरी फ्यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर genuinely interested, then take admission as early as possible before batch gets full, ठीक है। then okay, any other question? when can we register? मैडम मैं पहले बोला मैंने कि ऑलरेडी जो 12th के बच्चे थे ऑलरेडी टेकन एडमिशन, उनके एडमिशन पहले हो चुके थे, ऑलरेडी पेड द फीस along with the 12th। so अभी जो सीट्स है they are very less seats. We won't be giving admission for more than 35 students right now. तो obviously उसमें से maximum student तो पहले हो चुके हैं हमारे 12th के बच्चे, along with that मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो do it as early as possible, ठीक है। Okay, on this note I will end today's session. Actually 5-10 मिनट राइट सेशन एक्सटेंड हो गया, नो इश्यूज। डाउट्स क्लियर करना इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।